नाउ डिफरेंशिएशन करने के लिए we must know some basic algebra of differentiation and some common results. So common results में we have some very basic ones, which is power rule. So the first one is power rule. Power rule कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी x की पावर है, let's say x to the power n, then the dy by dx becomes n आगे आ जाता है x n minus 1. This is the one of the most important tools now. नेक्स्ट पावर रूल के साथ जो आता है, जो हम पावर रूल की तरह ही करते हैं ना, पावर रूल विल वर्क फॉर एनी पावर दैट इज अ कांस्टेंट. ठीक है. नाउ दिस वुड आल्सो वर्क इफ y इज गिवन x टू द पावर, लेट्स से log a दे रखा है. लेट्स से आपको दे रखा है x टू द पावर log a. इट्स स्टिल द पावर रूल विल वर्क ऑन इट and your differentiation will become dy by dx is equals to log ax. ठीक है, ये ब्रैकेट्स लगाना यहाँ पे जरूरी है, वरना तुम्हें लगेगा log के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है. सो log a x log a minus 1. Okay, so this is how you do this and you cannot, क्या मतलब उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम. 1 by a, नो नो नो, a to the power minus 1 नहीं है वो, a minus 1 है. log a का क्या हो गया, तो डिफरेंशिएट थोड़ी कर रहे हैं हम, वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है. तो जो तू सोच रही हो तब होता है जब log x होता है, वो कांस्टेंट है. सो log a x, इसे हम लिखेंगे log a, मतलब आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि यहाँ पे हमने बेस 10 ले रखा है. x की पावर log x होती है तो उसमें भी log x को 1/x थोड़ी लिखते हैं, log नहीं x तो उसमें, हाँ मतलब अगर a to the power log x होती तो मतलब अलग होता है, तो फिर हम वैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. a to the power log x. हाँ, तो फिर वोट कर सकते थे. एनीवेज, so we have x to the power log a minus, I can log this, write this as log 10, and then this simply becomes log a by 10 x log a by. So yeah, this is what you can do for this particular question. And then this is simple application of power rule. Then you also have your other one, which is your differentiation of chain rule. So it's like more like chain rule parametric में लगा सकते हो आप. समझाता हूँ parametric मतलब क्या होता है. So let's just say you should have some basic algebra of derivatives. For algebra of derivatives, you have y is equals to, let's say, some two functions f of x plus g of x. So, or अगर f of x लिख रहा हूँ तो let's say third function is equals to the sum of the functions, then the derivative of h of x is simply the derivative of f dash x plus derivative of g dash x, and plus minus दोनों पे work करता है. For quotient, for product, we need to use product rule. If f of x into g of x है, then this is equals to f dash x gx plus g dash x f of x. Then if h of x is equals to f of x divided by g of x, then this becomes f dash x gx minus g dash x fx divided by g of x whole square. You'll only use the quotient rule when absolutely necessary. Simple terms में मत करना. अगर power rule लग सकता है तो power rule लगाओ, quotient rule पे मत जाना, because simplify करना उससे मुश्किल हो जाता है. Then there are some other common results as well. For example, if you have y is equals to a, where a is a constant, then dy by dx is simply zero. So similarly, अगर y equal to कुछ भी हो, let's say अगर तुम्हें ऐसे भी दे रखा है y is equals to a log e to the power 3, मतलब ऐसे भी दे रखा है, dy by dx will be, हाँ ये हाँ ये प्रोडक्ट रूल है. यहाँ पे जो log e 3 लिखा है इसका बेस 10 या e है.
फर्क नहीं पड़ता वैसे, लेकिन ई है। तो वो तो 1, फिर वो 3 आगे आ गया तो वो ए क्यूब हो गया, ए क्यूब हो गया। आई एम जस्ट आस्किंग इट की डिफरेंशिएशन क्या होगी इसकी। ए क्यूब भी होगी, ए क्यूब इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? ए क्यूब या फिर 3 है, ये क्या होगा? 3 लॉग हो जाएगा, लॉग ए क्यूब होगा, ए क्यूब 3 ए स्क्वायर। क्या इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? क्योंकि वो 3 आ गया मेरा, 3 लॉग हो जाएगा, आपको पता लगता है फिर ए क्यूब को डिफरेंशिएशन 3 ए स्क्वायर। 3 ए स्क्वायर कैसे होगा? ए तो कांस्टेंट है, लॉग 3 आ जाएगा, कांस्टेंट को कैसे पूछी ए कैसे? क्यूब को डिफरेंशिएशन बताओ, ए क्यूब भी कोई आंसर बता दो। मेरे हिसाब से तो ए इसको ए क्यूब या 3 ए होना चाहिए दोनों में से। नाइस। ए क्यूब ए क्यूब मैं लिख देता हूँ, ए क्यूब 3a और ये क्या कह रहा था? ए क्यूब 3 ए स्क्वायर। 3 ए स्क्वायर 3a स्क्वायर। वो भी बताओ ना, नौ जवाब जल्दी बता। कितना टाइम है? इधर है और ऑल आर वैलिड। सही गलत है बड़े नालायक हो यार। 0 मारा। अबे कांस्टेंट है, कुछ भी लिख दूं मैं, कितना भी लंबा कांस्टेंट लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कांस्टेंट लिख दूं, फर्क क्या पड़ता है? डिफरेंशिएशन स्टेज 0। मतलब ये तो क्या था, फर्क क्या पड़ता है? log e और log 10 कांस्टेंट है। सर बट यहाँ पे x है कहीं? बट ए तो बाहर आ जाएगा ना। बाहर आ जाए, बट x भी तो होना चाहिए ना, तब तो बाहर आएगा। मैं तो पूरे में पूछ रहा हूँ x कहाँ है, पूरे में x ही नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है कुछ। Just a value, just complicate value. It's like saying ki, what is the differentiation of pi? dy by dx is still 0. I mean, just because it's a complicated symbol does not mean its differentiation will change. It's still a constant. Pi into e still 0. Pi into e squared still 0. Pi into log e still 0. मतलब all of these are constants. Until and unless there is an x in it, you do not have anything else. सर अगर पाई के साथ वाई और दोबारा से तो फिर अलग डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैं इसीलिए यहाँ पे समझ रहे हो, यहाँ पे मैंने मतलब बस समझा भी वही रहा था, इफ यू थिंक अबाउट इट, कि वही समझा रहा था। हाँ, अगर y इक्वल टू e टू द पावर x है, इसकी डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाता है e टू द पावर x। नाउ इफ y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x होता है, तो वी हैव dy बाई dx इज इक्वल्स टू a to the power x है, अब पावर x है, a to the power x log a. Okay, if y is equals to log x, your dy by dx 1 माइनस अगर कोई एक आयु का बताओ, क्या? अगर वो एक आयु का बताओ, ये कितना होगा? हाँ, तो फिर ये हो जाता है, अगर let's say y is equals to a to the power y, log so y this means dy by dx is equals to a to the power y log a dy by dx. Now dy by dx उधर ले आते हैं, so अगर मैं dy by dx उधर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा? dy by dx 1 minus a to the power y log a is equals to 0. 0 के नीचे ये गया 0 हो गया, तो dy by dx क्या आ गया? 0. There's a better way to think about it. Just take log both sides. What do we get? We get, अगर log both sides लेते हैं क्या मिलता है हमें? Log y is equals to y log a y log a. Okay, log a is a constant. y को अगर, हाँ मतलब y, अगर मैं y को उधर ले log a को उधर ले जाऊँ और इधर ले आऊँ इसे, so we have log a is equals to y by log y. ठीक है, and then if you differentiate this side and you differentiate this side, this comes out to be this. Yes, it will come out to be the same. Anyways, next log x होता है तो differentiation is 1 upon x. Now when I write log x, and I write the differentiation to be 1 upon x, the base here is, this is the natural log. This particular one is the natural log.
ये जो जिस लॉग की हम बात कर रहे हैं, जो डिफरेंशिएशन करने के बाद आ रहा है, दैट इज अ नेचुरल लॉग, मतलब वो उस पर्टिकुलर, हाँ मतलब उसकी बात कर रहे हैं। अगर कोई और बेस हो, लेट्स से यू हैव लॉग, let's say 2x, इसकी डिफरेंशिएशन पूछते हैं वो, so you'll have to convert this. How do you convert this? You write y is equals to log x divided by log 2. log 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, log x की डिफरेंशिएशन 1 upon x, so this is the differentiation for log 2x, right? Different from log x. log x is base e होना चाहिए। That's the problem with, मतलब हम इस क्लास में करते हैं वो लॉग, नेचुरल लॉग को और कॉमन लॉग को अलग अलग नहीं शो करते हैं मेजॉरिटी टाइम, इसलिए कंफ्यूजन होती है। Yeah, this is the thing. Next is something we known as chain rule, and the chain rule is a lot relevant when we think about parametric functions. Parametric functions मतलब एक वैल्यू दूसरे पे डिटरमाइंड होती है। फॉर एग्जाम्पल, say a function is y is equals to u into v, where u is equals to x plus 3 and v is equals to x square plus 2x plus 4. Let's say you have two different values. So when I calculate dy by dx, बोलो, प्रोडक्ट रूल नहीं लगा प्रोडक्ट रूल ही लगाएंगे। When I calculate dy by dx, what I am doing is कि पहले u को कांस्टेंट रखेंगे, dv by dx and plus v को कांस्टेंट रखेंगे, du by ये dx. We can calculate du by dx अलग से, this will be 1, and dv by dx अलग से, it should be 2x plus 2. We'll substitute the value here. This is u into 2x plus 2 plus v into 1. क्या डिफरेंशिएशन सिंगल टाइम करी है मैंने, बेसिकली ये डिफरेंशिएशन की ही वैल्यू है, मैं बस वैल्यू डाल रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, अलग से दिखाई है मैंने, बस मैं करने को एक सेम स्टेप पे कर सकता था। नाउ वी आल्सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू u की x plus 3 into 2x plus 2 and plus v, which is equals to x square plus 2x plus 4. You will obviously simplify this, but this is what is the meaning of when you differentiate पैरामेट्रिक फंक्शंस, which means कि ये फंक्शन इस पे डिपेंड करता था, ये फंक्शन इस पे डिपेंड करता था, बट हम टेक्निकली इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, बिकॉज ये कांस्टेंट्स नहीं है, ये वेरिएबल्स है, और ये वेरिएबल्स की क्या वैल्यू है एक्स में, वो हम देखना चाहते हैं। दिस इज व्हाट इज नोन एज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, मतलब दिस इज हाउ चेन रूल इज यूज्ड। क्या dv और du क्यों आया? सीधे तरीके से ये वेरिएबल है, अगर दो वेरिएबल प्रोडक्ट हो रहे हैं तो u की डिफरेंशिएशन क्या होगी? u की डिफरेंशिएशन इज नो लॉन्गर 1, u की डिफरेंशिएशन इज du by dx, because it is a different variable than x, anything different than x. अगर फॉर एग्जांपल जब हम a की बात कर रहे थे तो हम a को कांस्टेंट ले रहे थे, भाई यहाँ पे अगर a वेरिएबल होता तो हम सेम चीज नहीं करते, तो लॉग लेना पड़ता। तो एनीवेज द पॉइंट इज कि वो तब लॉजिकल सेंस बनाता है जब ये कांस्टेंट हो, अगर ये कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, तो हमें चेन रूल लगाना पड़ता है, एंड चेन रूल इज सब्स्टिट्यूटिंग इट फॉर डिफरेंट फंक्शंस। नाउ चेन रूल कैन गेट इंक्रीजिंगली कॉम्प्लिकेटेड डिपेंडिंग ऑन की हाउ, मतलब डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी किसकी है। फॉर एग्जांपल हमने जो लास्ट क्लास में करा था, अगर मैं ये कर दूं x टू द पावर log x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, so let's say कि this is y is equals to this, okay। पहले सबसे पहले एक चीज देखा करो कि यहाँ पे फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन है, जब भी फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन हो, you'll have to take log, you have no other way, you'll have to take log. So taking log both sides, you get log y is equals to log x to the power log x plus root x square plus 1. अब log x root x square plus 1 आ गया प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, ये आ गया इनटू, इनटू क्या है हमारे पास, log x. Now remember, always use brackets here, okay, always use brackets here. Which brackets I'm talking about? कि ये पूरा आगे आया है, तो log की जो internal angle है सिर्फ इतना है। If I do not use this bracket is necessary. Why is it necessary? Because if I do not use this bracket, it can mean कि ये angle के साथ आगे वाला log multiply हो रहा है। Because if I write log 2 into 3, what does it mean? कि ये दोनों multiply हो रहे हैं। It does not mean कि ये दोनों multiply हो रहे हैं। So if I want कि ये दोनों multiply हो, I should include a bracket here. So understand, some implicit brackets do not mean the same. So यहाँ पे
अलग मतलब होगा। अब आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा और प्रोडक्ट रूल के साथ साथ आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई इट गेट्स इंक्रीजिंगली कॉम्प्लिकेटेड। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस log x कर दो। नहीं, प्लस कैसे करेगा? अच्छा, ये दोनों प्लस, थिंग इज, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये दोनों लॉग मल्टीप्लाई में, देयर इज नो प्रॉपर्टी फॉर लॉग ए इनटू लॉग बी, देयर इज नो प्रॉपर्टी फॉर दैट। you have property for log a into b, okay, not for log a into log b. So सबसे पहले हम इसमें log x को कांस्टेंट रखते हैं एंड इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। इसकी डिफरेंशिएशन तो मैं याद होगी, हमने लास्ट क्लास में करी थी, 1/√x² + 1 होती है, कल करी थी हमने। करना पड़ेगा अभी, तुम्हें करके देखना। नहीं मतलब देख लो, कर देते हैं। log x की डिफरेंशिएशन होगी 1 क्या है, 1/x प्लस रूट x² + 1, देन चेन रूल लगेगा, x की डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1/√x की 1/2√x और 2x² की इंटू 2x, ठीक है। फिर एलसीएम लेके वो आता है, प्लस इसके बाद ये पूरा कांस्टेंट रखेंगे हम, log x into √x² + 1 and then log x की differentiation 1/x. So this is the value of your differentiation y को ऊपर भेजने के बाद। So हाँ, तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है इसमें, आएगा भी नहीं वैसे, कॉमन आएगा नहीं कॉमन, मतलब क्योंकि log x है, इधर log x plus √x² + 1 है, there is nothing common that you can take further. But the point of all of this was कि differentiation implicit, sorry, this is other question in which you have to use logarithmic and then you have to also use chain rule. Differentiation is a single step question and always differentiation एक single step में ही खत्म हो जाएगी। आगे आपको सिर्फ अलजेब्रा ही सॉल्व करना होगा, उसके आगे अलजेब्रा के अलावा कुछ नहीं सॉल्व करना होगा। बट डिफरेंशिएशन मल्टीपल स्टेप्स में नहीं कर सकते, कैन नॉट अपडेट द फंक्शन, ठीक है। सो एक बार जो अभी तक मैंने लिखा है वो नोट कर लो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड आई विल नोट इट, राइट की कौन सी फंक्शंस कौन से टाइप के है, सो दैट यू जस्ट हैव अ रफ स्टार्ट। So only difference between these two functions is the fact that इन दोनों के डोमेन डिफरेंट है। तो ये दोनों फंक्शंस इक्वल नहीं है। इक्वल फंक्शंस तब होते हैं जब उनके वैल्यूज भी सेम हो और डोमेन्स भी सेम हो और रेंजेस भी सेम हो, ऑब्वियसली। सो यहाँ पे डोमेन रिस्ट्रिक्शन क्या है कि द आर मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। डोमेन इसका पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, एक्स की नेगेटिव वैल्यू रूट में नहीं हो सकती। यहाँ पे आर क्या हो सकता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी हो सकता है, तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स होता है। Now if I restrict the domain, if मैं दोनों के डोमेन को restrict कर दूं कि डिग्री मतलब डोमेन और both these function is equals to r positive, then these both functions are effectively the square. So basically अगर हम squaring both sides करते हैं, what I'm saying is कि रूट के जो अंदर है that must be greater than equal to 0, which means कि यहाँ पे when I square both sides, squaring both sides, I definitely can square. What I'm doing is y square is equals to root x plus a plus root a plus x whole square। मैंने बेसिकली दोनों साइड स्क्वायर करा। अब व्हाट आई वांट इज कि जो इसका, जब मैंने इस साइड स्क्वायर करा, ठीक है, जब मैंने इस साइड स्क्वायर करा, आई जस्ट वांट कि इससे पहले क्या था, इससे पहले y इक्वल टू, मतलब रूट एक्स को स्क्वायर थोड़ी करा, रूट थोड़ी एलिमिनेट करा अभी तक मैंने रूट तो एलिमिनेट ही नहीं करा। तो दिस डज नॉट अपडेट द फंक्शंस एज ऑफ इट, डज नॉट अपडेट द फंक्शंस एज ऑफ इट। एनीवेज इसका डोमेन क्या था, सोच के देखो, इसके डोमेन में था, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन वाज दैट x upon a must be greater than equal to 0 and a upon x also must be greater than equal to 0, ठीक है। Now one of these days in some extra class we will rediscuss how to calculate domain and ranges, and why that is important is because in future when you study maths, if at all you study maths, you will face a lot of difficulty in understanding domains. So this year I was teaching in a different way to them and I realized कि वो थोड़ा सा better होता है, पहले inequality कराना फिर domain range कराना, so you will also understand it. So we will rediscuss it, but this is the restriction here. Squaring this particular value will carry on this restriction. तो basically जब ये हम square करेंगे तो we have x upon a plus a upon x plus 2, but conditions क्या रहेंगी, x upon a must be greater than equal to 0 and a upon x must be greater than equal to लिखना पड़ेगा every step, for every step. Yes, this is not to you, but to if I am doing this, मतलब मुझे ये करना पड़ता है, and in fact domain range questions में ये करना पड़ता था जब आपकी क्लास में थे। So this is what is the only difference between when you square and when you do not square, कि आपको एक condition लिखनी पड़ती है।
अगर ये आपने कंडीशन लिख दी, यू इफेक्टिवली मेड द फंक्शन सेम, नाउ यू कैन स्क्वायर, अब आप स्क्वायर कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप स्क्वायर रूट करते हो तो आपको इसकी उल्टी कंडीशन डालनी होती है कि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज हो सकती है एंड देन उससे अपडेट करना होता है। सो अगेन मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप स्क्वायर रूट जैसे फंक्शन या डिवीजन जैसे फंक्शन या मल्टीप्लिकेशन जैसे फंक्शंस नहीं यूज कर सकते। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर व्हेन यू अपडेट द फंक्शन, फॉर एग्जांपल जब हम लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि मेजर लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो वैल्यू है वो कोई कांस्टेंट नेगेटिव वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ये होता ना, लेट्स से log, let's say x was equal to -3, अब मैं बोलूं taking log both sides, so log x is equals to log of -3, I cannot do that. I cannot do that. Log does not exist for negative values, so I cannot do this. So you have to make sure कि आपकी जो values हो वो नेगेटिव ना हो log ट्रांसफॉर्मेशन में। बट द थिंग इज कि हम log ट्रांसफॉर्मेशन एनीवे तब डील करते हैं, तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं और फंक्शंस की वैल्यूज हमें एनीवे नहीं पता होती कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, सो वी कैन यूज डोमेन। हम बस एज्यूम कर लेते हैं कि वो वैल्यूज की इफेक्टिवली पॉजिटिव ही आएगी। दैट्स व्हाई यू डू नॉट थिंक बिफोर अप्लाइंग इट, बट यू आर टेक्निकली डूइंग द करेक्ट वे, इट्स नॉट लाइक तुम गलत कर रहे हो। इसके बाद हमने 2y dy by dx करेंगे, ऐसे आएगी डिफरेंशिएशन 2y dy by dx, 1 अपॉन ए कांस्टेंट है, 1 अपॉन ए बाहर रह गया, x की डिफरेंशिएशन 1 प्लस a अपॉन x की डिफरेंशिएशन x टू द पावर -1 है, तो वी हैव -1 आ गया and then x to the power -1 -1 -2 plus 0, so we have 2y dy by dx is equals to 1 upon a minus a upon x square. We'll just simply multiply x both sides, we get 2xy dy by dx is equals to x upon a minus a upon x. यहाँ पे x कट सकते हैं because we are again assuming that x is not equal to 0, x cannot be equal to 0 if this is the case. So I mean, and again मतलब hence proof. Yeah. Next question. Recording of something. इस क्वेश्चन में पहले हम रैशनलाइज कर रहे हैं, रैशनलाइज करने से ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर बना, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड इफेक्टिवली ये आ गया, दिस इज y, स्टिल y. नाउ वी डिफरेंशिएट dy by dx is equals to 4x plus 0 minus 2 into x common, इसकी डिफरेंशिएशन 1 upon 2 हाँ 1 upon 2 root x square plus 1 into 2x, then plus you have root x square plus 1 common into 1 की x की differentiation 1, so this gives 4x minus 2x square by root x square plus 1 क्या, हाँ इन दोनों में ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई में इसलिए प्रोडक्ट एंड प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 भी है यस। सर इसको यहीं पे नहीं छोड़ सकते? एक एलसीएम ले लो, बस एक एलसीएम ले लो, 4x रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू, जब एलसीएम ले रहा है तो एलसीएम लेना, या तो एलसीएम मत लो, या ले रहे हो तो ढंग से लो। माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कट जाएंगे, सो वी हैव माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही तो होगा। सब दोनों मैंने सोचा फिर वो ब्रैकेट को लाओ, दोनों मैंने सोचा तो अपन जो ब्रैकेट में यहाँ पे ब्रैकेट को लाओ, भाई ब्रैकेट तो ये माइनस तो यहाँ था ना, वहां थोड़ी था, क्यों आएगा माइनस, क्यों आएगा माइनस, वहां तो माइनस है ही नहीं कहीं, यहाँ पे ब्रैकेट को लाओ, कहाँ ब्रैकेट खुला है? मैं तो इस 2x स्क्वायर को बस यहाँ लिखा है, मैंने तो और कोई ब्रैकेट ही नहीं ओपन करा। सर ये 2 आ गया, अरे रुको देख, 2x स्क्वायर प्लस 1 था ना, ये है 4 इंटू रूट 4x इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, सर वो पहली बात माइनस होगा शायद, -2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये ऊपर। अच्छा हाँ ये, हाँ फिर ठीक है, तो ये माइनस है और ये माइनस है, ठीक है। देन वी हैव -2x स्क्वायर
एंड ये भी नेगेटिव है, तो माइनस 2x² एंड माइनस -2 2 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 4x इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x² माइनस मेरा 8x पर आ रहा है। क्यों, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, रुक जाओ। मेरा तो यही आ रहा है। आंसर तो यही है। सर ने ये सुना है कि थोड़ी एरर बाय 16 - 5 देता है। log y is equals to n log x plus root x square plus a square, ठीक है। सो 1/y dy by dx is equals to n, इसकी डिफरेंशिएशन याद है, इसके x अपॉन रूट x प्लस x बस हो गया। सर x तो आता है ऊपर, क्या नहीं, x आएगा, x आता है x आएगा 2x। अरे मैं इस पूरे की डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूँ, इस पूरे की डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा करा तो है 3 बार, अब 5वीं बार कर रहा है आज, ये पूरा करके ये याद, बस इसलिए मैंने लॉग करा कि आप याद है ना उसकी डिफरेंशिएशन। लॉग की डिफरेंशिएशन मतलब इसकी याद है, मैं बस इसलिए मैंने करा है। x स्क्वायर प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 1 अपॉन x प्लस। हम ऐसे पेपर में डायरेक्ट लिख दे। अरे क्यों सब नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस में करो, पेपर में प्रैक्टिस में पेपर प्रैक्टिस में कर सकते हो, पेपर में नहीं कर सकते। स्टेप्स खा गए तो हाँ, लेकिन 1 स्टेप दिखाओ भी तो क्या करा है, आंसर लिख दे, प्रूव दैट लिख दे तू। पहले 3 मैथ्स के दोनों साइड को 0 से मल्टीप्लाई करना है, सिस्टम कर दिया सर। ठीक है, दोनों साइड को चेंज करते हैं, बात तो एक ही होती लग रहा है मैथ्स के बच्चे पढ़ा रहा हूँ मैं। है। वही सबसे बढ़िया 100 रुपए में दिन साथ 100 रुपए का नोट चिपका ले आ। मेरे पास पैसे ही कमी है ना भाई, जितने बड़े बता वो तो ठीक है, मेरे बैलेंस शीट में मिलियंस का डिफरेंस आता था। उसका चेक ही लगा। नोट तो नहीं डाल पाएंगे। अच्छा इसकी करूँ, एक में ये मैंने तुम्हें कराई भी थी, तुम्हें शायद याद हो, याद शायद ना याद हो। सर कोई अच्छा तो तगड़ा क्वेश्चन दो ये आ गया। चलो डिफरेंशिएट, ये तो आप ही सकते हैं, ये तो पेपर में ही है, तो दोनों का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स और इसका भी तो मेरी पूरी है वो कौन है डिटरमिनेंट है ना वो। अरे मॉड है, कौन है टेक्निकली मॉड of a single value is actually determinant बस अगर but remember it's a magnitude of determinant, not yeah. हाँ तो क्या हाँ मतलब दोनों सेम बातें नहीं है। अरे बस सिंपल से ही होता है। नहीं तो थिंक इज, अगर किसी क्वेश्चन में उन्हें मॉड भी देना और डिटरमिनेंट भी देना, पता है वो क्या करते हैं, वो ऐसे देते हैं। नहीं अगर देना हो तो वो डिटरमिनेंट को dt लिखेंगे, वो मैट्रिक्स का लगा तो डिटरमिनेंट ऑफ -3 मॉड, -4 मॉड, -5 मॉड एंड -6 मॉड, which basically means कि this is आप वैल्यू डाल दो कि 3 4 5 6 ही तो है। नहीं मैं बता रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन, मुश्किल कुछ नहीं है। कैसे निकालते थे इसको, 18 -2 है ना इसका आंसर। ठीक है मुझे मॉड x की डिफरेंशिएशन नहीं आती है, पर क्या मुझे इसकी डिफरेंशिएशन आती है अगर मैं x टू द पावर n लिखूं, इसकी तो आती है ना मुझे, तो मैं मॉड x को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बस सोच के बताना। means the same thing, means the same thing, so which means I can now use the power rule, which is y equal to क्या, 1 को नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ 1 into 1 नहीं है वो मॉड है ना, तो मॉड को मैं लिख सकता हूँ कि मॉड का सेम मतलब होता है कि अगर मैं x स्क्वायर को रूट कर दूं तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों वैल्यू आ सकती है। क्या ब्रैकेट खोल दो मतलब, तो फिर x आ जाएगा, वो पागल है क्या,
अगर मैं ब्रैकेट खोल दूंगा तो x बन गया, तो तुम्हारी जो मैंने प्रॉपर्टी लगाई वही खराब हो गई। दिखा तो दिया। नहीं नहीं वो इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू x, 2 और 2 कट के x नहीं होता, एक्सपोनेंशियल सॉल्व कर रहा है, तो वेरिएबल्स के लिए सॉल्व कर रहा है। एनीवेज, तो दिस इज 1/2 x टू द पावर 2 इनटू, बोलो 1/2 माइनस 1 इनटू x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, सो ये आ जाएगा 1/2 x स्क्वायर्ड इनटू, ये कितना आ जाएगा, x स्क्वायर सब वो तो अपॉन में आएगा ना। हाँ तो इनटू कर रहा हूँ ना, माइनस 1/2 इंटू 2x, नहीं कुछ नहीं कर रहा, तो ये आ गया 1/2 रूट एक्स स्क्वायर इंटू 2x, हमें पता है रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2 कट के x अपॉन x mod x, this is the differentiation of it, this is incomplete without this particular line, ये कब डिफाइन नहीं होगा, exactly, so this is incomplete, क्या, this is incomplete without this, so remember, and why is it so कि हम जीरो पे क्यों नहीं बोल रहे कि इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, क्योंकि जीरो पे if you remember mod x is नॉन डिफरेंशिएबल, जीरो पे मतलब जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल, तो जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल, याद रखना कभी कभी कुछ फंक्शंस ऐसा ना हो कि तुम्हें ऐसा कोई फंक्शन दे दे और ऐसे कोई पॉइंट पे दे दे टेस्ट करने डिफरेंशिएशन जिसपे आप वो डिफरेंशिएबल ही ना हो, फॉर एग्जांपल दिस फंक्शन y इक्वल टू mod x, वो पूछे dy by dx at 0 निकालो, at x equal to 0, it is not differentiable at this point, हाँ बस बोलोगे नॉट डिफरेंशिएबल, ये तो एक आधे नंबर में ही दे हाँ सकते दिस इज मोर लाइक एन एमसीक्यू, मोर लाइक एन एमसीक्यू, नॉट की इसके क्वेश्चन हैं। ये तो मतलब अब तो ऐसे कर सकते हैं ना, क्या, कंडीशन में जो तूने करा है वो भी कर सकते हैं, जो नमन ने करा है उसको मैं लिखने का तरीका सिखाता हूँ, फिर तुम फिर लिखोगे f of x या फिर y is equals to f of x is equals to minus x when x is less than 0, x when x is greater than 0, remember equal to कहीं नहीं आएगा, ठीक है, वैसे तो equal to नीचे आता है बट डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट पे, इसलिए उस पॉइंट पे मैं टेस्ट ही नहीं करना, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, f dash x लिखोगे, f dash x लिखोगे, minus x की डिफरेंशिएशन -1, x की डिफरेंशिएशन 1, and you write it as when x is less than 0 and when x is greater than 0. Technically this also translates to this only, this also translates to this only, it's just that ki what I did right now is a single figure for both the differentiations ki wo bada ho ya chota ho, what is happening here ki you are converting into piecewise, now you might think ki piecewise is the answer always, lekin agar multiple, let's say ki har ek point, जैसे greatest integer function याद है तुम्हें, हर एक पॉइंट पे अलग अलग वो वैल्यू ले रहा होता है, तो उसका पीस वाइज नहीं बना सकते आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आप पीस वाइज नहीं बना पाओगे, so that's why we use such transformations, so you should this is an interesting one, that's why I did this. Anyways, just think about functions a while, if you might remember कि log में नेगेटिव नंबर्स आ ही नहीं सकते, log में नेगेटिव नंबर्स आ ही नहीं सकते, तो log mod x is same as writing log x, मेरे मन में x बोला तो है so that is with कंफर्म 1 upon x, ठीक है, as simple as that. So remember, you might get confusing functions, but if you remember it, if you have the basic understanding about functions कि किसका क्या domain, किसका क्या range, then you can always solve it, you can always solve it. मुझे पहले होता है हफ्ते रेंज का, तो एक बार सुनिए मुझे खत्म नहीं बताया था कि तो रेंज से कर देख ले कौन सा किससे क्या वैल्यू होगी, उससे बट सभी क्वेश्चन इजी हो गए। Yeah, it helps. इनपुट आउट I will eventually like मतलब one day teach you functions again, it's important because you might have forgotten, it's important to understand. Anyways, ये differentiate करो, हाँ नहीं अब कुछ अच्छा प्लीज भाई हाँ लग दे रहा हूँ, ये एक नंबर का क्वेश्चन है ये पेपर में रख दो तो ये करना ये क्या हो गया ये क्या हाँ यार मतलब सर राहुल जी के बारे में पूछा था आपके उनके पापा के बारे में पूछा, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं ना। yes. हाँ यहाँ पे एक्सपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं, एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं तो हम उन्हें प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं, e to the power 2 log x into e to the power 3x, एक साथ किया तो we have इन्हें हम स्विच कर देंगे, ना स्विच करने से पहले हम 2 log को स्विच पहले नहीं कर सकते, स्विच इसके बाद कर सकते हैं जब e to the power log, हाँ इससे पहले स्विच नहीं कर सकते, so basically y is equals to
e log x squared हो गया into e to the power 3x, even though it will mean the same thing, but y equal to ये आ गया x squared. नहीं नहीं नहीं, अभी बताता हूँ एक सेकंड. तो ये log e तो 1 हो गया, y equal to x square into e to the power 3x. अब ये दो अलग अलग फंक्शंस है, तो पहले x स्क्वायर कांस्टेंट रखते हैं, e to the power 3x की डिफरेंशिएशन, e to the power 3x into 3x की डिफरेंशिएशन 3 प्लस अब e to the power 3x कॉमन रखते हैं, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x. So now we are taking e to the power 3x common, we are left with x भी कॉमन आ जाएगा 3x भी कॉमन आ जाएगा, तो we are left with 3x plus 2. So that's your answer. E to the power x minus y into I can write this as is equals to log x minus log y, and then e to the power x minus y को differentiate करते हैं, so ये stays e to the power x minus y, 1 minus dy by dx is equals to log x की 1 upon x and log y की 1 upon y dy by dx. अब this is e to the power x minus y minus e to the power x minus y dy by dx is equals to 1 by x minus 1 by y dy by dx. So इधर ले आते हैं उसे 1 by y dy by dx minus e to the power x minus y dy by dx is equals to 1 by x minus e to the power x minus y. So dy by dx, you are left with 1 by y minus e to the power x minus y equal to 1 by x minus e to the power x minus y. Final answer is 1 minus y e to the power x minus y divided by y dy by dx is equals to 1 minus x e to the power x minus y divided by x. आप बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, so dy by dx is equals to y 1 minus x e x minus y divided by x 1 minus y e x minus y. We know that this is ln x, और ln x तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ln x ही चाहिए हमें, उसकी डिफरेंशिएशन अपॉन x होती है. अब log x अपॉन log x को लिख सकता हूं मैं ln x डिवाइडेड बाय ln a. ओके, सो ऊपर क्या आ गया, ln x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ln a. ओके, नाउ अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट तो बाहर रख देते हैं, 1 अपॉन ln a बाहर है. अब x log x होल स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2 log x 2 ln x डिवाइडेड बाय, बोलो डिवाइड बाय मतलब, और फिर log x की आ जाएगी 1 अपॉन x. तो दिस इज 2 अपॉन x into ln x divided by ln a, which is 2 by x into log a. मैं कह रहा था ना मैं सीडिंग कर दूं. कब कह रहा था? सर नहीं, मैंने बोला था मैं सीडिंग करूंगा. मैं सुना नहीं है, बट सी करेक्ट. अबे नहीं, मैंने